mentioned in the theory of relativity are not everything, so not in relation to anything else. So time and distance जो होते हैं वो किसी दूसरे के relation में नहीं आ सकते, time and distance. So this happens. So this was his theory of relativity. One shall know what is relativity, then only इसका meaning पता चलेगा, है ना, because it has a scientific touch. According to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey. If one of them has been moving very fast relative to other. See what he said. देखो, हाँ, रिलेटिविटी टाइम पे जो पेपर लिखा है कि दो क्लॉक्स में अगर सेम टाइम लगा के एक क्लॉक को ट्रेन में दौड़ा दिया जाए, ट्रेन में रख देंगे और उसको चलने देंगे ट्रेन में, और एक को रिक्शा में चलने देंगे, तो दोनों का टाइम चेंज हो जाएगा ड्यू टू स्पीड. दैट इज अल्बर्ट आइंस्टाइन्स थ्योरी. That was relativity, paper of relativity. ये उसने लिखा है. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. और उसके बाद में फॉर्मूला, वर्ल्ड में जो फॉर्मूला आया, दुनिया को जो पता चला, वो था मास एंड एनर्जी, है ना. और मैंने जो आपको स्टोरी बोली, आयरन, पीस एंड पेपर एक साथ फॉल होगा, वो मास एंड ग्रेविटेशन से रिलेटेड है. मास एंड ग्रेविटेशन. अल्बर्ट आइंस्टाइन कहाँ वर्क किया है? रिलेटिविटी में वर्क किया है, टाइम में वर्क किया है, मास में वर्क किया है, एनर्जी में वर्क किया है, स्पीड में वर्क किया है, ग्रेविटी में काम किया है. एवरीथिंग ही हैज एक्सप्लेन्ड इन सच ए वे पीपल येट कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट नॉलेज. What he has explained, they are trying to learn it and explore it more. So अच्छा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने टाइम मशीन के बारे में भी बोला है. He was such an expert that he has given his thoughts on time machines also. That means it is possible to travel in time. Who said? Albert Einstein. Then second genius, Stephen Hawking also said. Stephen Hawking ने तो एक वीडियो बनाया है एक्सपेक्टिंग दैट कि फ्यूचर में से कोई मुझे मिलने आएगा, ऐसा एक वीडियो बनाया स्टीफन हॉकिंस ने. एंड उसकी एक बुक है स्टीफन हॉकिंस की, सेवल पैरेलल यूनिवर्स. ओके, सो इन पैरेलल यूनिवर्स में भी उसने टाइम मशीन के बारे में बात की है स्टीफन हॉकिंस. सो दीज टू जीनियस, स्टीफन हॉकिंस, अल्बर्ट आइंस्टाइन. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. E is equal to m square. E is equal to m square. When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity. Albert Einstein. So that is Albert Einstein. So jokingly when he explained what is relativity, what time is related, how time is related, है ना. So आप जब अच्छा काम करते हो तो 2 घंटे भी आपको 2 मिनट लगता है, और जो तकलीफ वाला काम होता है तो 2 मिनट भी 2 घंटे के जैसे लगते हैं. That is relativity related with time. Okay, time. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unrevealing. Albert had, उसकी private life जो थी वो started failing, okay, unrevealing. So private life में थोड़ा failure उनके आया. Albert had wanted to marry Melvia Wright after finishing his studies, but his mother was against it. She thought Melvia, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Melvia's intelligence. She is a book like you. His mother said. Einstein put the wedding off. So he loved that girl, but Einstein's mother did not wanted Einstein to marry her. So ये उनका पहला failure था, that the girl whom he loved could not marry because it was his mother's wish, whatever his mother thought, but he accepted it. See, the genius fellow at the age of 24 is listening to his mother and his mother's advice, that is even about marriage.
Lives. The poor finally married in January 1903 and had 2 sons. But a few years later, the marriage faltered. Melvia, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. After years of constant fighting, the couple finally discovered in 1919 Einstein married his cousin Elsa the same year. See, the pair finally married in January 1903. कुछ हुआ और आगे लाइफ चली गई up to 1903, but they married and what happened, they had 2 children, but that same thing what his mother was believing happened. She was losing her intellectual ambition. She wanted to do something for her intellectual, and her ambitions she was losing because of sons and all. So what happened, they divorced. They had divorced in 1919. How many years they lived together? 16 years. After that they divorced, and Albert Einstein married to his another relative Elsa the same year, 1919. Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame in 1915. बट 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड के इस पे बहुत फेमस होना शुरू हुआ. देखो बच्चों, क्या है, किसी भी साइंटिस्ट की पर्सनल लाइफ में देखो, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड आप वेरी फेमस पीपल, जितने भी दुनिया में फेमस पीपल हैं और जिनको जीनियस माना जाता है, जिनको ग्रेट माना जाता है, जो साइंटिस्ट बने, जो बहुत अच्छे डिसीजंस लिए या फिर बहुत अच्छे लीडर बने, उनकी पर्सनल लाइफ में या तो उनकी 2 शादियां हुई थी, या तो 3 शादियां हुई थी, या तो उनके बच्चे छोड़ के चले गए, या तो उनके बच्चे अच्छे नहीं रहे. ये उनकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं रही. दे फेल्ड इन देयर पर्सनल लाइफ, और दे वर नॉट गुड इन देयर पर्सनल लाइफ. कुछ तो जीनियस ऐसे थे कि उनको सिगरेट पीने की आदत थी, या फिर ड्रिंक अल्कोहलिक थे, ड्रिंक पीते थे, बट दे वर जीनियस. वो बहुत जीनियस थे. अल्बर्ट आइंस्टाइन हिमसेल्फ, ही वाज ए स्मोकर. सो ये बहुत जीनियस लोग थे, पर उनकी हैबिट या फिर पर्सनल लाइफ ऐसी थी. और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हैबिट बहुत अच्छी थी. नेवर स्मोक्ड, नेवर ड्रिंक्ड, हैड ओनली 1 वाइफ, नेवर डाइवोर्स्ड. एक ही वाइफ रही, डाइवोर्स नहीं लिया, और बच्चों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन. दे वर नॉट गुड, वेल नोन इन द हिस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल, नेपोलियन बोनापार्ट एंड हिटलर को बिल्कुल गंदी आदतें नहीं थी. ये बिल्कुल ऐसी कोई आदतें हैबिचुअल नहीं था किसी चीज़ का. बहुत अच्छा पेंटर भी था, बट ही इज़ नॉट फेमस, ही इज़ इल फेमस, है ना. ही बिकेम, वो तानाशाह बना. सो दिस इज नेपोलियन बोनापार्ट. ही इज इल फेमस, wanted to conquer the world, but never looked at a girl, never had bad habit. He was a soldier, king, but never had such things. Very disciplined life. खुद की लाइफ बहुत डिसिप्लिन थी. हिटलर की भी खुद की लाइफ बहुत डिसिप्लिन, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, है ना. और जीनियस पीपल देखो, उनकी हैबिट जो पर्सनल लाइफ में थी, दैट वाज नॉट गुड, बट दे वर वेरी वेरी जीनियस इन दी सोशल लाइफ. उन्होंने जो किया वर्ल्ड के लिए, दैट हैज़ बीन स्टिल बेनिफिशियल फॉर दी वर्ल्ड. ये चीज़ें होती है. सो कीप इट इन माइंड, इसको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना चाहिए. अच्छा, द सेकंड चैप्टर में क्या है, वो सेकंड पार्ट क्या है, ही स्टार्टेड बिकमिंग फेमस. ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1915 विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी. An eclipse of the sun is in 1919 brought proof that it was accurate. और in eclipse
टाइम एक्लिप्स का जब हुआ 1919 में, सो उसकी जो थ्योरी थी ग्रेविटी की वो प्रूव हो गई कि यस इट इज़ एक्यूरेट. आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम द फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड. द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन. एंड उसने क्या कहा था कि दैट द डायरेक्शन दिस एक्लिप्स के वक्त जो डायरेक्शन है लाइट का डिफरेंट स्टार से आने वाला वो कैसे चेंज होगा. एंड दैट वाज ट्रू, इट हैपेंड. आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921. 1921 का एक फ़ोटो है, वो हमने अपनी लाइब्रेरी में लगा के रखा है, देखो बच्चों. 1929 में नोबेल प्राइज़ मिला था अल्फ्रेड नोबेल को, और उस वक्त 29 साइंटिस्ट एट ए टाइम नोबेल प्राइज विनर एक साथ जमा हुए, एक फ़ोटो वो निकाला गया. दैट इज़ द ओनली फ़ोटो इन द हिस्ट्री दैट वी हैव इन अवर लाइब्रेरी. यू माइट हैव सीन, है ना, हमने साइंस एग्जीबिशन के दिन उसको रखा भी था, है ना. सो दैट वाज that is the time 1921 when he got the Nobel Prize. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. यूनाइटेड स्टेट में चला गया 1933 में. नाजीज जब पावर में आए, हिटलर वगैरह, है ना. so he went to United States. 5 years later, the discovery of nuclear fusion in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid of Nazis could build and use atomic bomb. so जब अमेरिका ने ये बॉम्ब बना लिया, एटम बॉम्ब बनाया था, and people were very upset, this Nazis, because जर्मनी के बर्लिन के हाथों अगर न्यूक्लियर फ्यूजन, the discovery of nuclear fusion in Berlin had American physicists in an uproar. They were very upset जब जर्मनी ने ये एटम बॉम्ब बनाया. Many of them had fled, और उसकी वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट और लोग जो थे जर्मनी से भाग गए. जस्ट एज आइंस्टाइन भी बहुत अच्छा साइंटिस्ट था, जर्मनी ने बहुत अच्छे साइंटिस्ट दिए, एंड ही ऑल्सो लेफ्ट ड्यू टू दैट, बिकॉज ड्यू टू द पावर गेम नाजी केम इन टू पावर. एंड नाउ दे वेर अफ्रेड ऑफ नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एटॉमिक बॉम्ब. सो सारी दुनिया को डर लग रहा था कि नाउ Germany will use atomic bomb. At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt. फ्रैंकलिन रोजवेल्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट थे 1933 से लेकर 1939. On 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. अगर सिंगल बॉम्ब भी अगर एक्सप्लोड किया जर्मनी ने ऐसा, तो फुल पोर्ट यूनाइटेड स्टेट का जो पोर्ट है एंड यूनाइटेड स्टेट सम टेरिटरी विल बी एक्सप्लोडेड, डिस्ट्रॉयड. द अमेरिकन्स his words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities Hiroshima and Nagasaki in August 1945. और ये एटम बॉम्ब क्या कर सकता है? Who told?